Namaskar. In my last two lectures, I tried to explain you about the basics of the Karyakarana Siddhant. The principles of the causation, that is called the Karyakarana Siddhant, is a resultant outcome of the basic instinct of the human being or any creature. I basically told you that at the in the process of evolution, first the creature started observing the things. Then when the observations were much more for the sake of study or for the sake of teaching to others, they were classified. And when this observation and classification were done, the another instinct, that how it occurs, what is the basic cause behind that, and that started thinking the human being or the other creatures that what is the reason behind. I explained you that Kasmai Devaya Havisha Vidhima, which is the ultimate God, which is the ultimate creator, which is the power behind the differentiation of the qualities and disqualified qualities of the universe. Kah kantakanam prakriti tekshanam chitram vichitram ring pakshinanam madhurya mikshau katukam marichi. What is the reason? In Charak Samhita, in first chapter, when we see the incarnation of the Ayurveda, Hetuling Aushadhagyanam Swasthatur Parayanam Trishutram Shashwatam Punyam Bubudhyam Pitamaha, that was revealed in the pure mind of Brahma and came up to the Indra. And Maharshi Bharadwaj got that Trishutra. And he just delivered the total without adding anything, without subtracting anything, what he learned from the Indra, totally in such a form, he told the Maharshi. But the Maharshi, they were fond of the knowing the reason behind that. And that's why Maharshi aste dadrushur yathava jnana chakshusa samanyam cha vishesham cha gunani dravyani karma cha samvayam te tadgatva. Tantroktam vidhimastitam. Actual faith came when they knew the reason behind that. And that is called the invention of the rationality. And this is the basic thing behind the Karya and Karana. Something you may know empirically. This is particular tablet, this is antipyretic. ये पैरासीटामॉल है, ये बुखार उतारती है. क्यों बुखार उतरा? मैंने पैरासीटामॉल दिया. ये भी एक कार्य कारणवाद है. लेकिन अगर अच्छी प्रकार से उसको देखा जाए, then at that time we will know what is the thermodynamics of this paracetamol, what is the pharmacokinetics, other things, and then there is a rational derivation of the things. And that's why Maharshi aste dadrushya yathava jnana chakshusa. So it is the basic nature of our philosophies, beginning from the Vedas up to the Ayurveda and up to this era, that you must observe something. The observations should be classified properly and then they should be analyzed for the factors of the cause and effect. And these three basic things are the basis of the science, and it is the irony that our philosophies are called the non-scientific, or they needs to be scientifically evaluated. It is a improper question, I think. So last lecture I explained these things. Today, one thing again. You must be ready to explain the terms. What is karta? What is karya? What is karma? What is karyafal? Like that.
हु इज कर्ता? हु इज कर्ता? Karta is the person who try to finish the work, who is intended to do the work. And last lecture I told you that Karya is what? In modern scientific language, without any displacement there is no Karya. But in Ayurveda, abhisandhaya karta pravartati. That is intended to do. Then even that is a Karya. This is the basic difference. Then karta means who tries to do that particular karya. कर्म सामान्यतः क्रिया उद्देश्य कर्म है. फॉर व्हाट दैट क्रिया इज डन. राम घर जाता है. फॉर व्हाट राम गोस. राम किसके लिए जाता है? राम घर के लिए जाता है. राम विद्यालय जाता है. विद्यालय कर्म है. जाना क्रिया है. राम करता है. व्याकरण की दृष्टि से ऐसा है. सामान्य साहित्यिक और सामान्य स्थानों पर क्रिया और कर्म को एक ही मान लेते हैं. तो हमको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इन दोनों के डिफरेंसेस को पहचानना होगा. राम घर जाता है, राम करता. किस उद्देश्य के लिए जाता है? घर जाने के लिए, क्योंकि उसकी क्रिया जाने की किस उद्देश्य के लिए होती? घर के लिए. घर कर्म है और जाना क्रिया है. यहां घर पहुंचना कार्य है, इसलिए हम कहते हैं कार्य क्या है? घर पहुंचना. उसके लिए क्रिया की जाती है जाने की. कर्म कौन सा है? घर. और घर पहुंच करके जिस प्रकार की चीजों को प्राप्त करता है राम, वह उसका कार्यफल है. घर पहुंचने से वो बरसात से बच गया. इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे उदाहरणों के द्वारा हम अपने मन में एक अभिधारणा बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स. मेनी टाइम्स लिटरली और साहित्य की दृष्टिकोण से इन सब का समावेशित प्रयोग किया जाता है. हमको उनके अवस्था के अनुसार उनकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को देखना चाहिए और आयुर्वेद में विशेष रूप से उनके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग का महत्व है. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी? कॉज माने कारण. कारण माने करने वाला. किन किन के माध्यम से हो सकता है? इफ एनीथिंग इज बीइंग डन, कितने माध्यमों से हो सकता है? अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 3 प्रकार के कारण होते हैं. समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण. ये सभी कार्यकर्ता स्वरूप हैं. कारण ये 3 हैं. इसमें जो समवायी है अपने को मिला के जन्म देता है. असमवायी प्रक्रिया है जो कार्य समाप्त होने पर नष्ट होती है. और निमित्त कारण उसके साथ जितने भी इंस्ट्रूमेंट और बनाने वाला है निमित्त कारण है. अब इसमें एक और डिफरेंशिएशन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट कर्ता एंड अन्य कारण. कर्ता मीन्स which tries to simulate the things, and anya karan means all the nimitta karan and processing. They can be classified in another way, but so far as the classical classification is concerned, let us be confined to that samvayi karan, asamvayi karan and nimitta karan. Then any process or prakriya or pravastha which tries to give rise another prakriya or process or the state, that is the cause. So which one? एक प्रक्रिया या प्रावस्था जब किसी दूसरी प्रक्रिया प्रावस्था को जन्म देती है तो कार्य कारण संबंध बनता है. जो प्रक्रिया प्रावस्था कार्य को जन्म देने का कार्य करती है वो कारण है, और जो प्रक्रिया या प्रावस्था उत्पन्न होती है वह कार्य है.
तो कारण या कॉज से कार्य के बीच का संबंध कार्य कारणवाद कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने यहां तक आपसे बताया था समवाय असमवाय निमित्त कारण। ये जितने भी कार्य कारण संबंध हैं हमारे दार्शनिक ग्रंथों में, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू। वन इज द सत्कार्यवाद, वेदांत एसेट्रा आर दे मानते हैं, और आयुर्वेद में भी सत्कार्य की महिमा है। हमारे यहाँ का सबसे सेलिब्रेटेड दर्शन सांख्य दर्शन, वो भी सत्कार्यवादी है। और असत्कार्यवादी बौद्ध, नैयायिक और वैशेषिक। सत्कार्यवाद के भी दो भेद बनाए गए, परिणामवाद और विवर्तवाद। परिणामवाद मीन्स तात्विक अन्यथा प्रतीति। तात्विक मीन्स तत्व के रूप में अन्यथा प्रतीति, मीन्स रियली दैट चेंजेस। और विवर्तवाद मीन्स दैट चेंजेस आर नॉट, बट वी सी द अनदर फॉर्म, इट इज द फॉल्ट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन। अतात्विक अन्यथा प्रतीति, दैट इज द अद्वैत वेदांत, दैट इज कॉल्ड विवर्त। विवर्त मीन्स भ्रम होना। परिणाम मीन्स जैसे दूध का दही परिणाम है, विवर्त माने जैसे रस्सी को सांप देखना। परिणामवाद भी दो प्रकार से माना गया है, धर्म परिणामवाद और लक्षण परिणामवाद। वाल में इसको दार्शनिकों ने बांटा है दो भागों में, लक्षण परिणामवाद और धर्म परिणामवाद। हम सत्कार्यवाद को शुरू करते हैं। उपनिषदों में नाव वस्तु नो वस्तु सिद्धि, अगर वास्तविक नहीं है तो अवास्तविक से वास्तविक की सिद्धि नहीं हो सकती। गीता में कहा गया ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। गीता 2nd चैप्टर 16th। ना सतो विद्यते भाव, भाव पदार्थों की उत्पत्ति असत से नहीं हो सकती और असत पदार्थों की उत्पत्ति भाव पदार्थों से नहीं हो सकती। तत्र कारणानुरूपम कार्यमिति कृत्वा सर्वम एवेति विशेष सत्व रजस तमोमयाम भवन्ति सुश्रुतशारीर। कारणानुरूप कार्य, सत्कार्यवाद का सुश्रुतशारीर में चैप्टर है। तत्र सर्वम एव चेतनम ईश्वर्ग, सर्व एवेश वर्गो व्यक्तादिको चेतनत्वेन तत्कार्यस्य महदा देरश्चेतनत्यात्। डल्हन ने व्याख्या किया है और इसी के आधार पर उन्होंने, मैंने आपको बताया था, शिलापुत्रक न्याय की अभिधारणा दी। सांख्य कारिका ने सत्कार्यवाद को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। चरक संहिता में सत्कार्यवाद की बड़ी महत्ता है। प्रत्येक स्थानों पर उन्होंने उसी चीज को माना है कि उसी से किसी भी कार्य की सिद्धि होती है। सांख्य कारिका, नवीं कारिका में कहा गया कि सत्कार्यवाद असत् कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात्, सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। असत् कारणात्, उपादान ग्रहणात्, असद से सत की उत्पत्ति नहीं होती। जिस प्रकार का कार्य होना होता है उसी प्रकार के उपादान ग्रहण करते हैं। उपादान का एक उदाहरण मैंने बताया था आपको। उपादान में संसाधन। किस प्रसंग में मैंने बताया था? छात्रों के मनोरंजन के प्रसंग में मैंने बताया था कि दार्शनिकों ने पूछा कि आपका ईश्वर इस सृष्टि का कौन सा कारण है? सत कारण है, समवायी है, असमवायी है, निमित्त कारण है। अगर ईश्वर समवायी कारण है, अपने को मिला के सृष्टि को जन्म देता है, तो बनाने वाला कौन है? अगर ये निमित्त कारण है, बनाने वाला है, तो फिर मटीरियल कहां से आया? प्रोसेस कैसे हुआ? तो दार्शनिकों ने उत्तर दिया कि यह निमित्तोपादान कारण है। यह निमित्त भी स्वयं है और उपादान भी स्वयं है। और उपादान कैसे है? कहा यथा ऊर्ण स्वनाभिष्य, जैसे मकड़ी अपनी नाभि से जाली निकालती है और स्वयं बुनती भी है, वैसे ही ईश्वर इस सृष्टि का उपादान भी है और
बनाने वाला भी है। तो असत्कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, इससे इसकी सिद्धि बताई गई है। आयुर्वेद में भी इसको ग्रहण किया गया है। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप इसको ठीक से पढ़िए। एक नेक्स्ट लेक्चर में इनको मैं अलग अलग बताऊंगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जो आयुर्वेद में उदाहरण दिए हुए हैं इस प्रकार के मिले जुले उदाहरण हैं कि प्रायः छात्र वहीं कंफ्यूज होते हैं। तो आप इसको एक बार देखिए कि असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात् सत्य से शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। व्हाट डज इट मीन? मीन्स कि जैसा भी हमको मटेरियल चाहिए, जैसा भी बनाना है, हमको तेल चाहिए तो तिल पेरते हैं, बालू पेर के तेल नहीं निकाल सकते। बार मथे बरु हुई घृत सेकिता ते बरु तेल, तुलसीदास ने असंभव की परिभाषाओं में बताई है। सर्वसंभव भावात, सबसे सब नहीं उत्पन्न किया जा सकता। जिसमें जिस चीज की शक्ति होती है उसी में उसकी कारणता होती है, और सब में सबकी कारणता नहीं होती। इसलिए सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है, असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। सो फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, आई एम टोटली in support of the Satkaryavad. Second is the Asatkaryavad are some other classifications of the Satkaryavad. सांख्य दर्शन के अनुसार परिणामवाद या तात्विक अन्यथा प्रतीति। What does it mean? Not only the difference in observation but the real state of material also changes. उदाहरण मैंने बताया था कि तात्विक अन्यथा प्रतीति, तात्विक मीन्स रियली, एंड व्हाट वी परसीव इज रियली चेंज्ड। अन्यथा प्रतीति जो हो रही वो तात्विक है। दूध से दही बन गया, हमको दही की जो प्रतीति हो रही है, दूध हम नहीं बचा वो दही हो गया, तो रियली दूध दही बन गया है, ये तात्विक है, कोई भ्रम नहीं है। Means not only the difference in observation but the real state of material changes. दूसरे उदाहरण से समझ लीजिए कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कारण इनटू कार्य। द कार्य इज टोटली चेंज्ड इनटू द कारण, इज टोटली चेंज इनटू द कार्य। दूध था, टोटल दही बन गया, एंड दैट इज द परिणामवाद। सांख्य सृष्टि सिद्धांत, चरक विमान स्थान श्रोतांसि खलु परिणाम मापद्यमाना नाम धातु नाम नामाभिवाहिनी भवत्यनर्थेन। चरक विमान 5। जठराग्नि योगात यद्देत रसांतरम रसानाम परिणमान्ते च विपापंगित स्मृत है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदम प्रजायते मेदोस्थि ततो मज्जा मज्जा शुक्रस्य संभव है। स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नीतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिन। मीन्स वेयर सोवेयर देयर इज रियल चेंज, दैट मे बी टोटल, दैट मे नॉट, बट इफ देयर इज a real change in the state of कारण into the कार्य, that is the परिणामवाद। दैट मीन दूध से दही बनना टोटली बन जाता है, लेकिन ऐसे भी कोई कार्य हो सकते हैं कि जहां टोटली वो नहीं चेंज होता, बट दैट इज रियल चेंज, देन इवन दैट इज द परिणामवाद। सेकेंड इज द विवर्तवाद। विवर्त मीन्स तात्विक अतात्विक अन्यथा प्रतीति। जो अन्यथा जो दूसरी चीज बनने की प्रतीति हो रही, दैट इज अतात्विक, मीन्स अनरियल। हियर द कारण is not totally converted into the कार्य, but we perceive it like that. ब्रह्मयो जगदिदम तु विवर्त रूपम। यह पूरा संसार ब्रह्म का विवर्त है। उसका वेदांत दर्शन का प्रतिबिंब, जैसे कहा 100 थालियों के भीतर अगर पानी रख दिया जाए तो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन सूर्य वहां नहीं है, उसका विवर्त प्रतीत होता है। जैसे रस्सी में सांप की प्रतीति होती है, ये विवर्त है।
ये सब पूरा संसार ब्रह्म का विवर्त है, रस्सी विवर्त है। माया शक्तिरखिलम जगदाना जगदात नोति। जगत की किसकी शक्ति है? माया की शक्ति से ये सारा संसार है। ब्रह्म है वो जगद्यम तो विवर्त रूपम, ब्रह्म की शक्ति से ये विवर्त रूप बना है। यानी टोटल रियल स्टेट इज नॉट चेंजिंग। मुझे कभी कभी इसके एग्जाम्पल खोजने को मिलते थे कि जहां आप एक्चुअल ना होता हो, लेकिन आपको अगर उसकी प्रतीति होती हो तो आप उसको किस रूप में देखेंगे? तो एक एग्जाम्पल मेरे पास आता है कि हम लोगों को प्रोफेसर ए के डे सर थे, यहीं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में न्यूरोफिजिक्स के थे। एक क्लास में उन्होंने कहा कि व्हाट वी परसीव इज नॉट एक्चुअल व्हाट वी परसीव। आवर इंद्रियास एक्ट एज ट्रांसड्यूसर। हमारी इंद्रियां ट्रांसड्यूसर की तरह से काम करती हैं। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर टाइप। ट्रांसड्यूसर ऐसी प्रविधियां हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। जब इस प्रकार की कोई प्रविधि हो, हमारे जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं ट्रांसड्यूसर का कार्य करती हैं। कान है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आंख है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जीभ है, ये रस को, टेस्टिस को अपनी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिससे हमको पता चलता है कैसी चीजें हैं। कोई है, घ्राण है, वो एक प्रकार की गंध को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसी प्रकार से त्वचा है, एक प्रकार की ऊर्जा को, जिसको प्रेशर कहते हैं, टच के द्वारा जिसका पता करते हैं, दूसरी प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। लेकिन विशेषता यह है कि इसकी इंटेंसिटी चाहे जैसी हो, बट द कंडक्टिंग वोल्टेज इज ओनली 6 मिली वोल्ट। हम तेज ध्वनि सुने या हल्की ध्वनि सुने, हमारे हाथ को कोई तेजी से दबाए या धीरे से दबाए, कोई पिन चुभोए या रुई से छुए, every time there is conduction of the 6 millivolt current, and it is the beauty of our brain that perceives the things like that. इतने दिनों में हमारे ब्रेन का जो माइंड सेट हुआ है, हम 3 डायमेंशनल देखते हैं। हम 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज सुनते हैं। हम रेड से लेकर के वायलेट तक देख पाते हैं। तो इसलिए 3 डायमेंशनल हमारा जो परसेप्शन है, इट इज आवर परसेप्शन। It is not the true that the universe is like that. It is not true what colors we are perceiving, they are the ultimate and final. There may be other colors, but due to the limitation of our indriyas, we are unable to perceive them. Likewise, what we are hearing, they are not the ultimate waves or sound waves. There may be other waves, but it is the limitation of our Gyanendri. So what in universe we perceive is not the ultimate nor final. It is just a limitation, restricted perception by the indriyas. And that's why what this universe is really we cannot say. बिल्ली को कोन्स नहीं होते, वो पूरी दुनिया को काली सफेद देखती है। हम पूरी दुनिया को 3 डायमेंशनल देखते हैं। कुत्ते बिल्ली हैं, हमसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुन लेते हैं, गाल्टन सीसी सुन लेते हैं। तो इट इज रियल पिक्चर बाय द साइंस दैट अबाउट द यूनिवर्स व्हाट वी परसीव इज नॉट द रियल। दैट इज ए अनरियल पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। इट इज आवर परसेप्शन दैट वी परसीव द यूनिवर्स लाइक दैट, एंड दिस इज कॉल्ड द विवर्त। शंकराचार्य ने कहा कि पूरा संसार उस ब्रह्म का विवर्त है, उसी का माया की शक्ति से माइनम तो महेश्वर है, महेश्वर ही माइक है। इन दोनों के बाद हम आपको थोड़ा सा असत्कार्यवाद बता दें। असत्कार्यवाद क्या है? न्याय और वैशेषिक दर्शन ने असत्कार्यवाद बताया, और कई हैं। इन्होंने कहा कि कारण में कार्य की सत्ता है, तो अगर कारण में ही कार्य छिपा हुआ है तो असमवाय और निमित्त कारण की आवश्यकता क्या है? अगर मिट्टी ही घड़ा है तो मिट्टी और घड़े के बीच का अंतर क्या है? और फिर असमवाय कारण, उसकी प्रोसेसिंग और उसके निमित्त कारण की आवश्यकता क्या है? और मिट्टी और घड़े के लिए अलग अलग नाम क्यों रखे गए? यहां तक कि दोनों में गुणों का अंतर क्यों है? सो कार इज समवॉट स्पेसिफिक विच इज नॉट प्रेजेंट इन कारण, एंड कारण वॉज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन कार्य।
मीन्स टू से कार्य इज समवॉट स्पेसिफिक विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन कारण। कार्य कुछ ऐसी विशेष अवस्था है जो कारण में उपस्थित नहीं था, एंड कार वॉज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन कारण, और कार्य जो है कारण के भीतर उपस्थित नहीं था वास्तविक रूप से, नॉट एक्चुअली। द कार्य असत मीन्स एब्सेंट, असत कार्यवाद मीन्स एब्सेंट, कार्य इज द असत, इज प्रोड्यूस्ड, ही स्टार्टेड, एंड दैट्स वाई। कार्य क्या था? वो सत्य नहीं था, उसमें उपस्थित नहीं था, वो असत था, उसको बनाना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द, ड्यू टू द असत इट इज कॉल्ड द असत कार्यवाद, एंड ड्यू टू द स्टार्टिंग आरंभ दिस इज कॉल्ड द आरंभवाद। सो कार्य is asat or absent, and that's why it is called the asat karyavad, and since it is produced or started, and that's why it is called the arambhavad, and that's why this principle is called the asat karyavad or arambhavad. There are many other things. Kshanabhangurvad, sarvam kshanam kshanam kshanikam, everything is the partial, fractionate, इवन एनर्जी फ्लो दैट इज कॉल्ड दी पैकेट्स में जाती है, क्या कहते हैं उसको? क्वांटम। एवरीवेयर देयर इज क्वांटा। बुद्धवाद ने कहा कि क्षणिक उत्पत्ति, क्षणिक स्थिति और क्षणिक विनाश। एक क्षण के लिए कोई चीज उत्पन्न होती है, अगले क्षण उसकी वो स्थिति बनी होती है, अगले क्षण ही उसका विनाश हो जाता है। और यह फ्रैक्शनेशन इतना तेज है कि आप कुछ भी नहीं बता सकते कि किस क्षण उत्पन्न हुआ, किस क्षण रहा, किस क्षण नष्ट हुआ। कहा जाता है ना कि वी कैन नॉट बाथ ट्वाइस इन द सेम वाटर ऑफ रिवर। नदी के बहते पानी में आप एक बार में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि जिस पानी में आपने स्नान किया वो बह गया। और इसीलिए क्षणभंगुरवाद की बात कही गई। पूरा संसार मनुष्य पैदा हुआ है, उसके जितने सेल्स थे सब परिवर्तित हो रहे हैं। ओनली द इक्विलिब्रियम इज कंटिन्यूअस। इस संसार में कहते हैं कि आयु संतानम बुद्धि संतानम हुआ, आयु की संतति और बुद्धि की संतति। आयु की संतति क्यों चल रही है? बिकॉज द कंटिन्यूम आर द कंटिन्यूटी इज गोइंग ऑन। एंड बुद्धि संतान मीन्स जो ज्ञान हमने गुरु से प्राप्त किया है वो अपने शिष्य को दिए, वो अपने शिष्य को दिए, एंड दैट कंटिन्यूअस गोइंग ऑन। वो गुरु नष्ट हो गए, लेकिन ज्ञान की निरंतरता बनी हुई है। ऐसे ही हमारी आयु की निरंतरता बनी हुई है, ऐसे हमारे ज्ञान की, हमारी परंपराओं की निरंतरता बनी हुई है। हमारे शरीर के जितने सेल हैं, जितनी चीजें हैं, सब में क्षणिक परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं। पूरा ब्रह्मांड क्षणिक है, क्षण क्षण में उत्पन्न होता है, क्षण क्षण में नष्ट होता है। नित्य पुरुष संज्ञकम कर्मफल भोक्ता नते तत् सदृश्यात् त्वन्ये परंपरा समुत्थिता सारूपाद्यत एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवा निमेष कालाद भवान काला शीघ्र तरोत्यते भग्ना नाम न पुनर्भव कृतम नान्यमुपैति च मतम तत्त्ववेदामेतत् यस्मात् तस्मात् सकारणम क्रियापभोगेन भूतानाम नित्य पुरुष संज्ञक है। नित्य जो है वो पुरुष संज्ञक है। चरक शारीर फर्स्ट का 46 50-51। So this principle is also accepted. There are other principles since the time limit is there. So in next lecture I will Satkaryavad, Asatkaryavad, Kshanabhangurvad, there are many other vad. So few other vad, and then I will try to simulate why they are these vad and why they are the explaining the same truth. Only our unreal perception or improper explanation leads to the controversies. मैं ये बताना का प्रयत्न करूंगा कि इस प्रकार सत कार्यवाद, असत कार्यवाद, क्षण भंगुरवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, ये वास्तव में सारी की सारी प्रक्रियाएं ही सही हैं। सत कार्यवाद भी सही और असत कार्यवाद भी सही है, लेकिन हम उनके अनुचित एक्सप्लेनेशन के कारण हम लोगों ने विवाद उत्पन्न किया है और इतनी सारी चीजों की परेशानी हुई है। So due to this time limit, thank you very much. In next lecture I will explain these things. Thank you.